So good evening. I'm going to tell you about today's phase 8 concluding phase, and then also little general tidbits about the elections. And finally, this was a big process, so I'll speak for a while also about the process that happened. I hope you are able to hear me, all of you. So good evening to all of you friends. You have been regularly coming to these press conferences at the short notice, for which I would like to thank you in the sense that I came to Kashmir and we had press conferences in Jammu as well. Sometimes you waited a while, but thank you so much. So as you know that the 8th phase has concluded today, we had successful phase 8, incident free, some minor thing here and there, nothing that has impacted the election. Now today's turnout overall has been 50.98% for Jammu and Kashmir. 50.98%, yes. In Jammu division, the overall has gone to 72.71%. 71%. And in Kashmir, it's touching 30%, exactly 29.91%. Yeah, a total of 3,21,694 voters came out today to vote. A total of 3,21,694 वोटर्स आज वोट डालने के लिए आए. उसमें जम्मू प्रोविंस में 2,25,828 थे और कश्मीर में 10 जिलों में 95,866 के 1,52,423 महिलाओं ने वोट डाले और 1,69,271 मर्दों ने वोट डाले. So all over Jammu and Kashmir, a large number of voters, as I said, 3,21,690 voters have come out of their homes to cast vote. The weather has been generally good. Still Kashmir is freezing. There have been -0 temperature also at some places, but people came in the morning. Voting was from 7 to 2, but in some of the places it continued after 2 o'clock also, as the voters were standing in the queues. In Kashmir province today सबसे ज़्यादा वोटिंग कुपवारा में हुई, वो है 63.8%. उसके बाद बांडीपुरा में हुई 56.5%. बारामूला उसके बाद है 44.6%. उसके बाद है बड़गांव 35.1%. कुलगांव 11.2%. और अनंतनाग में आज रही 8.6, शोपियां 8.58, पुलवामा में 8.50. जम्मू प्रोविंस में सबसे ज़्यादा पोलिंग पुंछ में हुई 83.58, रियासी में 81.9, राजौरी में 77, कठुआ 73, सांबा 73 पॉइंट समथिंग, किश्तवाड़ 73, रामबन also 73, and the least was in Udhumpur, which itself is 60.49%. So the exact figures of this turnout for the District Development Council elections we will share with you. I will not read the figures more, but you will have all the figures. So with that, we have come to the end of 280 constituencies, the District Development Council constituencies. As also today was the election in 28 constituencies, 13 in Kashmir and 15 in Jammu division. The candidates and all who participated we have shared with you yesterday, and I will not like to repeat that. Today we also had elections for the vacant seats of Sarpanchas and also the Panchas. The election has got concluded there as well, and their polling percentages we will share with all of you tomorrow. Before I go to the elections in general, how they went, I just would like to mention that we didn't have any significant incidents. However, there are few polling stations where there were some attempts
where some small instance of intimidation, few ballot papers having been torn in one of the polling stations, and the state commission, we decided and we have ordered repolling in these polling stations. During the course of the day we had issued a small press release, and you must have already received that. How many places the repolling? मेंशन करना चाहूँगा कि इस बार की इलेक्शन जो थी ये एक तो 280 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए हुई। ये एक बड़ी रीशोरिंग बात है कि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा लोगों ने डीडीसी जो एक हिस्टोरिक इलेक्शन थी और पहली बार हुई है उसमें पार्टिसिपेट किया है, और पीपल हैव पार्टिसिपेटेड विद very keen enthusiasm. We could see voting picking up at various places, and हमारी assessment ये है, हालांकि हम इलेक्शन अथॉरिटी है इसलिए हम ज़्यादा पॉलिटिकल कमेंट नहीं करते, लेकिन ये एक सोशियोलॉजिकल फैक्ट है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये लग रहा है कि वो अपनी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो अपने नुमाइंदे वहाँ पर चाहते हैं रूरल एरियाज़ में पर्टिकुलरली, क्योंकि DDCs आर कंसर्न विद रूरल एरियाज़, और इसी कारण से सारे लोग कश्मीर में और जम्मू में आगे निकले हैं और बड़ी मात्रा में उन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया है। इसी इलेक्शन में 1088 पंचायत हल्के और 12,153 पंच कॉन्स्टिट्यूंसी भी इलेक्शंस में थी। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रोल प्ले किया है इलेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, मैं उसकी तारीफ़ करना चाहूँगा। इलेक्शन सक्सेस तभी होती है जब पॉलिटिकल पार्टीज़, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और कैंपेनिंग का जो पीरियड है सारे सिटीजन उसमें जब पार्टिसिपेट करते हैं, और दूसरी तरफ से जो इलेक्शन करवाने वाले हैं गवर्नमेंट की मशीनरी है। इलेक्शन में जो एक तो इलेक्शन डिपार्टमेंट के ऑफिसर रहते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट दूसरे डिपार्टमेंट के डिप्लॉय किए जाते हैं, और चूँकि किसी भी इलेक्शन में पुलिस प्रेजेंस की ज़रूरत है क्योंकि इलेक्शन पीसफुल होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में और कश्मीर के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर के लॉ एंड ऑर्डर की असेसमेंट करके पुलिस एक अधिक मात्रा में डिप्लॉय करनी पड़ती है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, और वहाँ पर पुलिस का रोल और पुलिस ने जो हार्ड वर्क किया है उनके साथ साथ ही जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं जो जहाँ पर डिप्लॉयड हैं जम्मू कश्मीर में, उनके काम की भी साथ ही साथ में सराहना करने की ज़रूरत है। एंड इन फ्रंट ऑफ यू आई वुड लाइक टू देयरफॉर once again recognize the role of political parties in Jammu and Kashmir, all the independent candidates and all the private citizens who participated in taking the election forward, and also on the other hand the government machinery which participated in the election. Election का जो enthusiasm था, इस बार हमने आपसे शायद शुरू में बताया, हमने पहली बार नई गाइडलाइन भी तैयार करी गई थी। जैसे 80 ईयर्स से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो इलेक्शन अपने घर से कर सकते थे। फिजिकली हैंडीकैप्ड स्पेशली एबल्ड पीपल वो भी अपने घर से वोट डाल सकते थे। ये गाइडलाइन डिटेल में डिवाइस हुई और सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा गया कि लोगों ने खुद आना पोलिंग स्टेशन में प्रेफर किया। इसका क्या कारण है? ऐसा लगता है कि उनको भी एक अपनी सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी या एक प्राइड है, और साथ में जो फेस्टिव टाइप है उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट करना चाहा। ये मैं लोगों से असेस कर रहा था कि क्यों लोग खुद आते हैं और ये इसका प्रयोग उन्होंने क्यों नहीं किया। सिमिलरली फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल आल्सो, आज की इलेक्शन में एक ड्राइवर जो बेड रिडन था वो खुद वोट डालने के लिए हम उसको लाया गया उठा के, लेकिन वो भी वोट उसने डाला है। बहुत सारे ब्राइड ग्रूम्स ने वोट डाले हैं 8 ब्राइड ग्रूम का डेटा मुझे मिल रहा था जिन्होंने आपके अपने पूरे वो अभी उसी ड्रेस में थे, उन्होंने भी वोट डाले। नए वोट आज की एक पर्टिकुलर जगह में 25 नए थे, बट नए वोट तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि जो भी 18 साल से उम्र का ज़्यादा है वो हर एक इलेक्शन में एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन वो भी लोग बहुत ज़्यादा वोट डालने के लिए आए। इलेक्शन की काफ़ी ये इंटरेस्टिंग रही इंतज़ाम करने के लिए। इस किसी इलेक्शन की सक्सेस जो है वो ये भी है कि कितने कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितना है। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा रहा है। सबसे ज़्यादा डेटा को वेरीफाई एक बार फिर कर लेंगे, लेकिन एक किसी